Hello students, welcome to you all. So today we are going to start chapter number 2, that is internet services. Okay. So before starting this chapter, let me tell you what are the topics which are there which we are going to study in this chapter. Okay, so here I have made the list of topics. There are 5 main topics which we will be studying. Okay, so number 1 is email or electronic mail. Number 2 is search engine. Number 3 is FTP or file transfer protocol. Then number 4 web services, and under this topic web services we have to study internet chat, video conferencing, e-learning, e-banking, e-shopping, then e-governance, e-groups, advertising, blogs and reservation system, etc. Okay. And the last and the 5th topic is social networking. And in social networking, whatever social networking websites are there in which we have our accounts, so that they are the example of social networking. Okay, so we have to study few of them like Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Okay, so I hope you can see the topics. These are the 5 main topics which we have to study. And in today's class, we will cover electronic mail and search engine in detail. Let us start with electronic mail. Alright children, we are starting with our first topic, that is email or electronic mail. Now, before starting, I request you all to please open your books, and the chapter is given on page number 31. Along with these notes, along with this video, you have to open your book and see the topics from your book as well. Okay. It will help you to understand better. Now, first is email. Email क्या होता है? Electronic mail or email is the method of sending and receiving the messages through internet or through computer via internet. Okay? मतलब messages send करना और receive करना with the help of computer using internet is called email. Email की advantages क्या होती हैं? No use of stationery. Stationery means pen, paper. We don't have to use everything like that. Okay. Second is it is inexpensive. There is no charge. Very simple. If you have the data, if you have data pack in your phone or in your laptop, we can say if you have the internet, then easily you can send as many emails as you want to send. Number 3 is fast. Obviously, the way you type the message, it is very fast. Secondly, the way you send it is also very fast. ओके बहुत ही इजीली, बहुत फास्ट तरीके से हम मैसेज को टाइप करेंगे, रेसिपिएंट का नाम यानी कि जिसको सेंड करना है उसका नाम डालेंगे और हम एक क्लिक के साथ मैसेज को सेंड कर सकते हैं. ओके इसकी जगह अगर आपको मैन्युअली कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है या इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है लेटर के थ्रू, तो दैट विल टेक टाइम, दैट विल टेक 2-3 डेज. नेक्स्ट, इमीडिएट फीडबैक. जैसे कि मैंने बोला कि फास्ट मतलब क्या हुआ कि आपने लेटर भेजा, लेटर मतलब ईमेल. ओके यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेटर और इलेक्ट्रॉनिक मेल. आपने लेटर भेजा, उसका रिस्पॉन्स विद इन सेकेंड्स आपको मिल जाएगा. आपने मैसेज सेंड किया, रिसिपेंट ने उसको रिसीव किया एंड एट द सेम टाइम उसने क्या किया, रिप्लाई बैक किया, तो आपको मैसेज डिलीवर हो गया, आपने मैसेज रिसीव कर लिया. लेकिन अगर मैं पुराने जमाने में लेटर की बात करूं तो एक लेटर को जब हम पोस्ट करेंगे तो इट विल टेक 2-3 डेज. जब वो रिसीव करेगा, जो रिसिपेंट होगा वहां लेटर वो रिसीव करेगा, उसके बाद फिर से वो दोबारा वहां से रिप्लाई लेटर लिखेगा, अगेन उसको पहुंचने में आपके पास टाइम लगेगा. सो दैट इज वाई हियर इट इज इमीडिएट फीडबैक. देन रिकॉर्ड ऑफ मेल्स इज मेंटेन्ड. मतलब जितने भी आप ईमेल्स सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं वो सारे आपके इनबॉक्स में, देन सेंट मेल्स में वहां पर रहते हैं. ओके जो आपका ईमेल अकाउंट होता है वहां पर आपको ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें आपके मेल्स रहते हैं सारे. ओके तो उनका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट, लास्ट वन इज अटैचमेंट एंड मल्टीमीडिया सपोर्ट. Along with email, that means along with your message, you can also attach the files. आप फाइल्स को भी अटैच कर सकते हो. फाइल्स किस फॉर्म में हो सकती हैं? वो फोटोग्राफ्स हो सकती हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, यानी कि किसी भी तरह का मल्टीमीडिया फाइल भी ईमेल्स सपोर्ट करते हैं. ओके तो ये सारी क्या हो गई, एडवांटेजेस ऑफ ईमेल. नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस. नाउ हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होते हैं, सेम वे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं या लिमिटेशंस भी होते हैं. ओके तो ईमेल की क्या डिसएडवांटेजेस हैं या लिमिटेशंस हैं?
यू नीड द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अगर आपको मेल भेजना है किसी को तो यू नीड द कंप्यूटर, लैपटॉप और योर टैबलेट और फोन. सेम वे यू नीड द सॉफ्टवेयर. आपका जिस भी ईमेल अकाउंट में आपका अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि जीमेल है, याहू है, या जो भी है, आपको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट भी होगी. ओके. देन आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होना जरूरी है. इफ यू डोंट नो हाउ टू सेंड द ईमेल, यू विल नॉट बी एबल टू रिसीव द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दैट. ओके. तो आपको बेसिक नॉलेज होना भी जरूरी होता है. नेक्स्ट इज इम्पर्सनल. इम्पर्सनल का मतलब होता है उसमें पर्सनल यू कैन से इंटरेक्शन नहीं हो पाता. पर्सनल इंटरेक्शन इन द फॉर्म इमोशंस नहीं होते, जैसे कि आपका पर्सनल हैंड राइटिंग नहीं है उसके अंदर. ओके. कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो जिस तरह का फोंट होता है वो यूज कर सकते हो. दैट डज नॉट कंटेन्स योर ओन हैंड राइटिंग विच वी यूज इन द पेपर यूजिंग द पेन. ओके. सो दैट वे वी कैन से इट इज इम्पर्सनल. नेक्स्ट इज स्पैम मेल्स. कई बार होता है कि आपके इनबॉक्स में स्पैम ईमेल्स, ओके, यानी कि अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स जो होती हैं, अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट्स के जो मेल्स होते हैं वो आ जाते हैं. ओके. तो ये एक तरह का प्रॉब्लम है ईमेल के साथ. नेक्स्ट इज वायरस अटैक. कई बार क्या होता है, वायरसेस कैन अटैक योर ईमेल्स. इफ यू आर सेंडिंग अ ईमेल देन इट मे हैपन दैट वायरस अटैक में गेट अटैच टू इट. ओके. सो दीज आर फ्यू लिमिटेशंस ऑफ ईमेल. नेक्स्ट वी हैव ईमेल पार्ट्स, मतलब पार्ट्स ऑफ एन ईमेल. यदि आप किसी को ईमेल सेंड करते हो, अगर आपने ईमेल सेंड किया हुआ है तो आपको पता होगा कि ईमेल के दो सेक्शंस होते हैं. नंबर 1 इज हेडर एंड नंबर 2 इज बॉडी ऑफ द मैसेज और मेन मैसेज. हियर इट कंटेन्स द मेन मैसेज. हेडर के अंदर क्या होता है कि रेसिपिएंट का नाम, यानी कि आपको एड्रेस बताना पड़ता है कि किसको मैसेज सेंड करना है. सो इट टेल्स वेयर द मैसेज शुड बी सेंट. ओके. देन नेक्स्ट इज बॉडी. बॉडी के अंदर मेन मैसेज जो हमको सेंड करना है वो कंटेन करता है ये. ओके. सो इट कंटेन्स द एक्चुअल मैसेज टू बी सेंट टू द सेंडर. ओके. नाउ ईमेल एड्रेस. ओके. सो ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. अगर आप किसी भी ईमेल एड्रेस की बात करें, अगर आपकी भी ईमेल आईडी है तो आपको पता होगा कि पहले एक पार्ट होता है जो कि @ के पहले लिखा जाता है, देन @ के बाद वाला पार्ट होता है. ओके. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट. फॉर एग्जाम्पल ये जो है इसको हम बोलते हैं लोकल पार्ट और ये जो कहलाया जाता है उसको हम बोलते हैं डोमेन. ओके. फॉर एग्जाम्पल इफ आई कंसिडर jsmith@gmail.com. ओके. तो ये जो jsmith है ये क्या है, लोकल पार्ट, और ये जो gmail.com है ये क्या है, डोमेन. मतलब अकाउंट कहाँ पर, कौन से वेबसाइट पे अकाउंट बनाया गया है ये वो बताता है. ओके. लोकल पार्ट इज द यूजर नेम. ये जो लोकल पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यूजर नेम. ओके. विच इज फॉलोड बाय @ सिंबल. फाइन. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज CC एंड BCC. CC और BCC क्या होता है, ये हमको ईमेल एड्रेस जब अपन टाइप करते हैं, ईमेल एड्रेस के बाद अपन को ये ऑप्शंस मिलते हैं. ओके. नाउ एज वी कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, नाउ ये सपोज मेरा एक ईमेल अकाउंट है और मैं किसी को मैसेज सेंड करना चाह रही हूँ. आई वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज टू समवन. ओके. तो 2 के अंदर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ईमेल एड्रेस. जिसको भी ईमेल भेजना है, जिसको भी मैसेज भेजना है, तो यहाँ पर हमारा एड्रेस आ जाता है. ओके. देन हियर वी हैव दीज 2 ऑप्शंस, CC एंड BCC. नाउ इनका मीनिंग क्या है, CC मतलब कार्बन कॉपी एंड BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी. ओके. नाउ अगर आपको मल्टीपल लोगों को मैसेज भेजना है, सेम मैसेज, ये मेरा है मैसेज बॉडी, ये होता है सब्जेक्ट, यहाँ पर क्या होता है सब्जेक्ट, एंड देन दिस इज योर बॉडी. ये हेडर सेक्शन हो गया जो अपन ने पढ़ा पार्ट्स ऑफ ईमेल में. दिस इज हेडर सेक्शन एंड दिस इज योर बॉडी. ओके. नाउ CC में क्या करना है कि अगर आपको सेम मैसेज मल्टीपल लोगों को भेजना है, यही मैसेज मुझे मल्टीपल लोगों को भेजना है, तो मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेसेस टाइप करती जाऊंगी. ये फर्स्ट ईमेल एड्रेस, देन सेकंड ईमेल, थर्ड ईमेल, इस तरह से. ओके. सेम चीज हम BCC में भी कर सकते हैं. एक एड्रेस, दूसरा एड्रेस, तीसरा एड्रेस, इस तरीके से वी कैन टाइप मल्टीपल एड्रेसेस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें क्या होगा कि जितने भी ईमेल एड्रेसेस आप टाइप करोगे और उनको ये मैसेज सेंड करोगे तो उनको भी पता चलेगा कि ये मैसेज इन सभी लोगों को गया है. ओके. मतलब जितने भी सेंडर्स के पास आपने ये मैसेज सेंड किया है, सॉरी, जितने भी जिनको आप सेंड कर रहे हो, राइट, जितने भी सेंडर्स हैं जिनको आपने ये मैसेज सेंड किया है, तो वो लोग उस मैसेज को रिसीव करेंगे तो उनको पता चलेगा कि और भी इन सभी लोगों ने ये मैसेज रिसीव किया है.
लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है कि इसकी जो कॉपीज बनती हैं वो ब्लाइंडली बनती हैं, मतलब वो हाइड हो जाती है, वो दिखती नहीं है। यानी कि जो इंडिविजुअल रिसिपिएंट्स होंगे जो इस मैसेज को रिसीव करेंगे, जिनको भी आपने सेंड किया है, उनको पता नहीं चलेगा कि ये मैसेज और किस किस को सेंड हुआ है। ओके, ऑलराइट, इसमें पता चलता है, इसमें पता नहीं चलता। दिस इज सीसी एंड दिस इज बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। So how will I write the definition? CC stands for carbon copy. This is the way of sending the emails to multiple email IDs simultaneously. Okay, multiple email IDs पे simultaneously यानी कि एक साथ मैसेज सेंड कर देता है। BCC stands for blind carbon copy. This is the method of sending the email to multiple IDs without letting the recipient know about one another. Okay, इसमें भी multiple IDs पे अपन ने सेंड किया, but it will not allow the recipients to know about each other. So, without letting the recipients to know about one another. So, children, here we complete our first topic, that is electronic mail. I hope this is clear. Let us start with the search engine. Okay, the second topic for today. Now, search engine. Search engine क्या होता है? It is a tool which is used for searching any kind of information. है ना, ये एक तरह का टूल होता है जिसमें आप कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स सर्च कर सकते हो। आपको सिर्फ एक वर्ड देना होगा। सपोज मुझे स्कूल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, स्कूल्स इन भोपाल, तो मैं गूगल पे क्या लिखूंगी, स्कूल्स इन भोपाल, तो मेरे को सारी लिस्ट आ जाएगी जो जो स्कूल्स हैं जिस जिस एरिया में हैं। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स आ जाएंगे जो उस तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो गूगल हमारा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। हम कुछ भी सर्च करते हैं तो यूजुअली गूगल पे ही सर्च करते हैं। ओके, तो गूगल ही हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है सर्च इंजन का, जिसके थ्रू आप समझ सकते हो। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलेगी? अ सर्च इंजन इज अ टूल दैट इज डिजाइन्ड टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड बाय द कीवर्ड ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब ये एक तरह का टूल है जो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करके देता है वर्ल्ड वाइड वेब पे। ओके, मतलब इंटरनेट पे। यूजिंग द कीवर्ड, स्पेसिफाइड बाय द कीवर्ड मतलब यूजिंग द कीवर्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया स्कूल्स इन भोपाल, तो ये जो वर्ड लिखा अपन ने स्कूल्स इन भोपाल, ये क्या है? कीवर्ड। कीवर्ड वो वर्ड होता है जिसको यूज करके अपन कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। ओके, नाउ सम कॉमन सर्च इंजिन्स। सम कॉमन सर्च इंजिन्स आर गूगल, नंबर 1। ओके, दिस वी नो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा सर्च इंजन है। सबसे ज्यादा जो कस्टमर्स हैं वो इसी के ही हैं। देन bing.com, go.com, hotbot.com, ask.com एंड yahoo.com। गूगल के अलावा ये और सर्च इंजिन्स हैं, ओके, जिनके थ्रू अपन इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ये जो सर्च इंजन होता है ये वर्क कैसे करता है? ओके, इसकी वर्किंग होती है प्रॉपर, तो वो स्टेप्स में वर्क करता है। नाउ लेट अस सी हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। देयर आर 3 स्टेप्स। ओके, सो ऑल द सर्च इंजिन्स वर्क इन द सेम वे। दे कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. Number 1 is web crawling. Step number 2 is creating an index. And step number 3 is searching for keyword. Let us start studying from the first step. Now, in the first step, here we have the crawler or the spider. ये जो first step है, इसमें क्या होता है? एक crawler होता है या एक spider होता है जो सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है वो देखेंगे अपन। It searches the websites and select the pieces of information from the various websites. ये जो crawler होता है या first step, इसका काम क्या होता है? जो भी कीवर्ड अपन ने दिया उस कीवर्ड को यूज करके क्या करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पीसेस के फॉर्म में। पीसेस के फॉर्म में मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट से निकाल के ये आपको सर्च करके देता है। अब इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको अपन बोलते हैं वेब क्रॉलर। ये फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी सर्च इंजन का। ओके, ये क्या करता है? जंप्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर, मतलब इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट से निकाल के देता है, तो इसीलिए ऑब्वियसली इट हैज टू जंप फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर और फ्रॉम वन पेज टू अनदर। ओके, तो ये क्रॉलर का काम यही है। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्च इंजन एंड इट इज अ सॉफ्टवेयर विच इज कॉल्ड स्पाइडर। क्रॉलर और स्पाइडर इज सेम थिंग एंड इट जंप्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर। ओके, नाउ नंबर 2, in the second step, index of the data and their locations is created. मतलब जो भी डेटा अपन सर्च करते हैं या जो भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं अपन, तो उसका एक इंडेक्स है ना, उसका एक डेटा प्रिपेयर होता है जो कि सर्च इंजन के अंदर रहता है। ओके, सो इंडेक्स ऑफ द डेटा एंड देयर लोकेशन इज क्रिएटेड
नाउ एवरी इंफॉर्मेशन दैट द स्पाइडर और द क्रॉलर फाइंड्स, पूरी जो भी इंफॉर्मेशन क्रॉलर या स्पाइडर ने फर्स्ट स्टेप में फाइंड करी, उस सबको अपन क्या करते हैं, स्टोर करते हैं सर्च इंजन के अंदर. ओके, विथ इंडेक्स, उनका लोकेशन और उनका इंडेक्स स्टोर हो जाता है. ओके, इन द सेकेंड स्टेप. थर्ड इज सर्च फॉर द कीवर्ड. दिस इज द लास्ट पार्ट और द थर्ड पार्ट, एंड इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल सॉफ्टवेयर. ओके, और वी कैन से एक्चुअल सर्च इंजन. इसमें क्या होगा, दिस विल सर्व द वेरियस पेजेस ऑन द इंटरनेट. जितने भी पेजेस हैं उनको वो सर्व करेगा, मतलब सर्च करेगा, और आपके कीवर्ड के अकॉर्डिंग उसको मैच करने की कोशिश करेगा. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया, सपोज आई एम सर्चिंग फॉर स्कूल्स इन भोपाल. तो क्या करेगा, जितने भी वेबसाइट्स होंगे जहां पे स्कूल्स इन भोपाल लिखा होगा या स्कूल्स की इंफॉर्मेशन होगी भोपाल के स्कूल्स की, तो उसने क्या किया, उन वेबसाइट्स पे जो कंटेंट है उसको और मैंने जो कीवर्ड प्रोवाइड किया, मतलब स्कूल्स इन भोपाल, उन दोनों को मैच किया. ओके, ये किसका काम है, ये इस थर्ड स्टेप का काम है. तो ये क्या करेगा, दोनों जो कीवर्ड है और जो वेबसाइट्स पे जो इन्फॉर्मेशन है दोनों को मैच करेगा. जो भी इन्फॉर्मेशन यूजर ने एंटर करी उसको मैच करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करके देता है डेटा. जो भी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले करके देता है. ऑलराइट, so this will serve the various pages on the internet and try to match the keywords that are entered by the user. When the match is found, it will display the information to the user. It will display them to user. Okay, so I hope this is clear.